الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی. آج مورخہ 12 جولائی ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات. عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سسودیا کی ضمانت پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ کے جج نے خود کو اس معاملے سے علیحدہ کر لیا ہے. آج کی دوربین میں دیکھیے اس کیس کی موجودہ نوعیت. اناؤ میں حادثے کی شکار بس سے متعلق جانچ میں یہ دھاندلی سامنے آئی ہے کہ یہ بس جس شخص کے نام پر رجسٹرڈ تھی اس کے نام پر 39 بسیں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 35 بغیر پرمٹ اور فٹنس ٹیسٹ کے سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں. مزید معلومات تفصیلات میں دیکھیں. کسانوں نے ایک بار پھر حکومت کے خلاف محاذ کھولنے کی تیاری کر لی ہے. میٹنگ میں 17 ریاستوں سے کسانوں کے 150 نمائندے شریک ہوئے. میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا اور کیا حکمت عملی طے پائی، تفصیلات میں دیکھیے. کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ منی پور 2 حصوں میں بٹ گیا ہے، حالات اب بھی بہتر نہیں ہیں. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں دیکھیے. جموں کشمیر انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت اور ملک بدری کے لیے پینل تشکیل دیا ہے. محکمہ داخلہ نے جموں کشمیر سے غیر قانونی تارکین وطن کی پہچان کرنے اور انہیں ملک بدر کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. بھارت نے افغانستان سے پیاز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ پیاز پاکستان کے راستے بھارت بھیجی جا رہی ہیں، مگر پاکستان اس بات سے بہت ناراض ہے. ناراضگی کی وجہ اور پاکستان کا موقف دوربین کی تفصیلات میں جانیں. غزہ میں جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیلیوں کی ایک بڑی آبادی جنگ بندی معاہدے اور یرغمالیوں کی رہائی سمیت دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے. غزہ کی تازہ اور موجودہ صورتحال آج کی دوربین میں دیکھی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے حسن خیل علاقے میں ایک آپریشن کے دوران 2 فوجی جوان، 2 پولیس افسر اور 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. حکام کے مطابق اس تصادم میں ایک انتہائی مطلوب شدت پسند کو بھی ختم کر دیا گیا. امریکہ میں اب گروسری اسٹورز پر دودھ اور انڈوں کے ساتھ بندوق کی گولیاں خریدنے کی سہولیات دستیاب ہو گئی ہے. ایک کمپنی نے کئی شہروں میں گولیاں فراہم کرنے والی کمپیوٹرائزڈ وینڈنگ مشینیں پنساری کی دکانوں پر نصب کی ہے. T20 عالمی کپ میں پاکستان کی بدترین کارکردگی پر پی سی بی نے سخت قدم اٹھایا. وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو قومی سلیکٹرز کے عہدے سے برخاست کر دیا ہے. تفصیلات میں جانیں گے پی سی بی کے مزید اقدام. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جمعرات 11 جولائی کو سسودیا کی ضمانت کی عرضی پر سماعت ملتوی کر دی گئی. ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ دہلی شراب پالیسی معاملے میں گرفتار سسودیا کی عرضی پر سماعت کرنے والے جج نے خود کو معاملے سے علیحدہ کر لیا. وہ تقریباً 16 ماہ سے جیل میں ہیں اور کئی بار ضمانت کی درخواست پیش کر چکے ہیں. رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے جج جسٹس سنجے کمار نے منیش سسودیا کی درخواست ضمانت کی سماعت سے خود کو الگ کر لیا. دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ کے خلاف منی لانڈرنگ اور شراب پالیسی معاملے سے متعلق بدعنوانی کے معاملے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. سسودیا نے اس معاملے میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی ہے. جسٹس سنجیو کھنہ، سنجے کرول اور سنجے کمار نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی، لیکن کمار نے خود کو اس سے الگ کر لیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور مرکزی تفتیشی بیورو دونوں نے شراب پالیسی معاملے میں منیش سسودیا کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے. اتر پردیش کے اناؤ میں ہوئے دلخراش بس حادثے کی جانچ میں کئی سنسنی خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں. ابتدائی تفتیش کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ حادثے کی شکار ہونے والی بس کا نہ تو پرمٹ تھا اور نہ ہی اس کی فٹنس چیک ہوئی تھی. اس ضمن میں اب ایک اور دھاندلی یہ سامنے آئی ہے کہ یہ بس جس شخص کے نام پر رجسٹرڈ تھی اس کے نام پر 39 بسیں رجسٹرڈ ہیں اور ان میں سے 35 بسیں بغیر پرمٹ اور فٹنس ٹیسٹ کے سڑکوں پر دوڑ رہی ہے. نیوز پورٹل آج تک کی رپورٹ کے مطابق حادثے کی شکار بس یو پی مہوبہ ضلع کے ARTO میں درج ہے.
जब इसकी मजीद जांच हुई तो इसके पर्दे से एक बड़े नेटवर्क लाल का नाम सामने आया, जिसके नाम पर एक दो नहीं बल्कि 39 बसें रजिस्टर्ड थी। ये सब देखकर महकमा के अफसरान हैरत ज़दा रह गए और हादसे की कड़ी को जोड़ते हुए ट्रेवल एजेंसी के मालिक, ठेकेदार और मज़कूरा नेटवर्क लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीरी शिकायत दी गई। इस दिन में जब मजीद तफ्तीश हुई तो ये बात सामने आई कि बुंदेलखंड के महबा से लेकर दिल्ली और बिहार तक जब बस माफियाओं के जरिए एक सिंडिकेट बनाकर बस चलाई जा रही है, इस मामले में महकमा के अफसरान के गठजोड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्नाव में हादसे का शिकार होने वाले बस फिटनेस पर परमिट के बगैर सड़क पर चल रही थी, इसके नतीजे में 18 अफराद की मौत हो गई। तहकीकात के दौरान हादसे की शिकार बस महबा जिला के खन्ना इलाके के मोही खुर्द गाँव के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह के नाम एक आरजी पते पर रजिस्टर्ड पाई गई। इंतजामिया से मालूमात मिलने पर डिवीजन के आरटीओ अफसर उदयवीर सिंह अपने 2 रुकनी टीम के साथ मेवा आरटीआईओ पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने दस्तावेजात की तलाशी ली तो ये हैरान कुन धांधली सामने आई कि एक ही शख्स पर पुष्पेंद्र सिंह के नाम पर 39 बसें रजिस्टर्ड है। मुल्क के किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का यह फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में किया गया है। इसमें 17 रियासतों से किसानों के 150 नुमाइंदे शरीक हुए। इस मीटिंग में एमएसपी, किसानों को पेंशन समेत किसानों से मुताल्लिक दीगर मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ एक बड़े एहतजाज का फैसला किया गया। इस मीटिंग में किसान लीडरों ने हुकूमत के 3 कवानीन से मुताल्लिक भी बात की, जिसके बारे में किसान लीडरों का कहना है कि हुकूमत इन कवानीन के साथ आमरीना मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि वो किसान के मफाद के लिए तहरीक को आगे बढ़ाएगी और इससे कबल तमाम रियासतों की तंजीमों को मजबूत किया जाएगा। एहतजाज के इस प्रोग्राम के तहत किसानों के मुतालबात पर मबनी एक खत भी तैयार किया जाएगा जो किसान के दरमियान तकसीम किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि कुल हिंद सतह पर तहरीक के जरिए किसानों की आवाज को उठाई जाएगी। किसान तंजीमों का कहना है कि किसानों के साथ हुकूमत ने झूठ बोला है। किसानों से बात किए बगैर झूठी एमएसपी का जिक्र किया गया, जबकि सिर्फ पुरानी एमएसपी का ऐलान किया गया। मीटिंग में यह भी फैसला हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा लोकसभा और राज्यसभा के तमाम मेंबरान पार्लियामान को एक डिमांड लेटर पेश करेगा। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर मणिपुर का दौरा करने पर जोर दिया और वज़ीर आज़म मोदी को रियासती आवाम के मसाइल सुनने का मशवरा दिया और कहा कि कांग्रेस और इंडिया भलो पार्लियामान में पूरी ताकत के साथ मणिपुर मसले को उठाएंगे। मणिपुर में अमन की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 मिनट की वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि मणिपुर 2 हिस्सों में बंट गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में तशद्दुद फूटने के बाद में तीसरी बार वहां गया, लेकिन बदकिस्मती से हालात में कोई बेहतरी नहीं आई। आज भी रियासत 2 हिस्सों में तकसीम है। वीडियो देख लीजिए, फिर मजीद खबरों की तफसील। 1 साल पहले आया था, फिर भारत जोड़ो यात्रा में आया और अब आया हूँ। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। इट्स द 3rd time I've come here since the problem started, and it has been a tremendous tragedy. Frankly, I was expecting some improvement in the situation, but I was quite disappointed to see that the situation is still nowhere near what it should be. Here, the need of the hour is peace. Violence is hurting everybody, and I have never seen anywhere in India what is going on here. The state is completely split in two, and it is a tragedy for everybody involved. I want to tell all the people of Manipur, I come here as your brother. I come here as somebody who wants to help you, who wants to work with you to bring back peace in Manipur. And I am ready to do whatever I can. Congress party is ready to do whatever it can to bring back peace here. Anytime you want me to come here, you want me to come here 5 times, 10 times, any amount of times you want me to come here, I'm happy to come here, and I'm happy to listen to what you have to say and try and help you as
leader of the opposition. Manipur is a proud state of the Indian Union. Even if there was no tragedy, the Prime Minister should have come to Manipur. And in this huge tragedy, I request the Prime Minister to take 1 day, 2 days of his time and just come and listen to the people of Manipur. It will comfort the people of Manipur, and we are, as the Congress party, ready to support anything that would improve the situation here. एक साल पहले आया था. Witness them burning our house. फिर आइए. और अब आया हूँ, मगर दुख की बात है कि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे. आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे. ये बम ब्लास्ट किया है. हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए. हम लोग घर जाना चाहता है. कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा. मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर. अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं पे है. वो ठीक है? ग्रैंडमदर ठीक है आपकी? ग्रैंडमदर अभी है ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर. कि वो भी कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प भी कर पा रहे हैं. आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे. आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे. तो आपका मेन बात है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए और आप वापस जाना चाहते हैं. घर जाना चाहते हैं हम लोग. हम घर में रहना चाहते हैं, अपने घर में रहना है. ये लड़ाई शुरू क्यों हुई? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है. मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हुआ है. हिंसा से किसी को फायदा हो रहा है? नहीं सर. ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯕꯥꯕꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर भी नहीं आता. Only from yesterday. हमारा भाई भी मर गया और हमारे देश में भी ऑपरेशन किया है. भाई का डेथ हो गया. Yes. Because of negligence. बैठो. Only hope, sir. That's what the people are saying. He is sick, and then because no medical assistance, no medicines were provided, so we didn't get any help from, like I said, from the government. Because you help us. We'll try. You are our voice. We'll try and help you. Yes. But medicines, our party can also try and help you a little bit. Even pregnant women are here, children, elderly people, they need help. Two people are in the hospital, they are telling. Moses said, whether this war ends early or not is in the hands of the government. Yeah, I think that is true. Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. So she's saying, my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. And my son is just a student. He's a BA student, and he was killed, and he's innocent. The first time that they're going through a conflict, or has this happened before with them? This is our third time experiencing a conflict. What can I do for them? I would like to request you, sir, please help my people. Thank them from my side. Thank you, Tito. Okay. You want to give this to me? Don't worry, come on. Don't worry. Everything will be okay. Don't cry. मोदी जी तो एक बार भी नहीं आता है. क्या करेगा? हम लोग बहुत दुख में रहता है. अभी 1 साल से 10 दिन हो गया रिलीफ में रहता है. आप बार आया है यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए. आपको शुक्रिया अदा करते हैं. आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए. हमारे लिए लड़ना है आपको.
हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। हमने आपकी बात, सबसे पहले हम यहाँ आए, हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब एमपीज ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई, और हम दबाव डाल सकते हैं और हम पूरा दबाव डालेंगे। 5 दिन सोया है घर में, अपना घर। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं रेस कर सकता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि कब आप वापस जाएंगी, क्योंकि ये सवाल सरकार दे सकती है। अगले सेशन में आप देखना, मैं आपकी बात उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 2011 से गैर कानूनी तौर पर इस खित्ते में मुकीम गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त और उन्हें मुल्क बदर करने के लिए एक 7 रुकनी कमेटी कायम की है। कमेटी इन तारिकीन वतन की जिंदगी से जुड़ी मालूमात और बायोमेट्रिक तफसीलात जमा करेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि मालूमात को बाकायदगी से डिजिटल रिकॉर्ड में अपडेट किया जाए। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला चंद्राकर भारती के एक हुक्मनामे में कहा गया है कि कमेटी के नौ तश्कील के लिए मंजूरी दी गई है ताकि 2011 से जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त की जा सके। इस पैनल की सदारत महकमा दाखिला के इंतजामी सेक्रेटरी करेंगे। भारत में फिलहाल प्याज की किल्लत है और इस कमी को दूर करने के लिए भारत अफगानिस्तान से प्याज खरीद रहा है। इस सिलसिले में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत प्याज की एक बड़ी खेप भारत भेज रही है। ये खेप पाकिस्तान के रास्ते भारत आ रही है। अफगानिस्तान के ताजिर इस पहल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। प्याज की पहली खेप अगले चंद दिनों में भारत पहुंच जाएगी। अफगानी ताजिर हबीबुर रहमान ने बिजनेस रिकॉर्डर को बताया कि हमने 8000 टन प्याज भेजने का मुआहदा किया है और ट्रक भारत की तरफ रवाना हो गए हैं। इससे एक तरफ अफगानिस्तान के किसान और ताजिर नए बाजार और मौके के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अलग तरह की बातें चल रही है। पाकिस्तान के माहिरीन भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात से काफी परेशान है। पाकिस्तान के सियासी मुबस्सिर कमर चीमा ने इस पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल किया कि वो भारत और अफगानिस्तान के साथ तिजारत क्यों नहीं बढ़ा रहे। कमर चीमा का मानना है कि अगर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म दोनों ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रखे तो दोनों मुल्कों को हमारे साथ तिजारत बढ़ेगी और हमारे किसानों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। कमर चीमा ने कहा है कि जो प्याज अफगानिस्तान से भारत जा रही है वो किनार के इलाके से जा रही है। ये खेती बाड़ी के लिए अच्छा इलाका है। अगर भारत और तालिबान के दरमियान तिजारत हो रही है तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत क्यों शुरू नहीं हो सकती। बुध के रोज जारी किए गए एक सर्वे के मुताबिक इसराइलियों की अक्सरियत ने गजा में जंग बंदी के मुआहदे की हिमायत की है। सर्वे के मुताबिक इसराइली जंग का खात्मा और हमास के ज़ेरे हिरासत तमाम गिरगामारियों की रिहाई के हक में है। यरूशलेम के थिंक टैंक इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के सर्वे में यह बात सामने आई है कि 56% इसराइली तमाम गिरगामारियों की वापसी के लिए मुकम्मल जंगबंदी और गजा की पट्टी से इसराइल के मुकम्मल इनखला के हामी है। ये आदाद शुमार जारी जंग बंदी मुज़ाकरात में इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के किरदी मौक़िफ़ के बरअक्स है। इसराइल किसी भी मुआहदे के हिस्से के तौर पर जंग को खत्म करने का अहद नहीं करेगा। पोल में यह भी पता चला है कि तकरीबन 30% इसराइली आर्जी जंगबंदी की हिमायत करते हैं जो कुछ इरगमारियों को आजाद दिला सकती है। 850 इसराइलियों के सर्वे में गलती का मार्जिन 3.85% था। इसराइल और हमास के गुज़िश्ता 9 महीनों से जारी जंग में पहली मर्तबा इंतहाई संजीदा बातचीत में मसरूफ है। इसराइल चाहता है कि हमास के ज़ेरे हिरासत 120 सिरगमारियों की रिहाई मुमकिन हो जाए, तो वहीं हमास इसराइली जारहियत को रोकना चाहता है। मुआहदे के एक अहम नुक्ता हमास का ये मुतालबा रहा है कि इसराइल किसी भी जंग को खत्म करने का अहद करे, जिसे नेतन्याहू ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा का कहना है कि बुध के रोज पेशावर के जिला हसन खील के इलाके में इंटेलिजेंस पर मबनी एक ऑपरेशन के दौरान फौज के 2 जवान और 2 पुलिस अफसर हलाक हो गए। इस ऑपरेशन में 3 अस्करियत पसंद भी मारे गए। इस ऑपरेशन से महज 24 घंटे कबल यानी मंगल के रोज खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के साथ तसादुम और हमले के मुख्तलिफ वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 एहलकार और 3 बच्चे हलाक हो गए थे। पाकिस्तानी फौज की मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के एक बयान में कहा गया है कि एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर सिक्योरिटी
फोर्सेज और पुलिस ने बुध के रोज एक मुशतरका ऑपरेशन अंजाम दिया। इस बयान में मजीद कहा गया है कि हाई वैल्यू टारगेट में शिद्दत पसंदों की एक कमांडर अब्दुल रहमान और उसके 2 दीगर साथी अस्करी पसंदों को शदीद फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया। फौज का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अब्दुल रहमान इंतहाई मतरूर था और हुकूमत ने इस पर 60 लाख रुपए की रकम भी मुकर्रर की थी। वो दहशतगर्दी के मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहता था और रवां वर्ष 26 मई के रोज कैप्टन हसन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह की मौत का भी जिम्मेदार वही है। अमेरिकन रॉन्स नामी कंपनी ने अलबामा, ओक्लाहोमा और टेक्सास में मुतअद्दिद ग्रोसरी स्टोर्स पर खुसूसी कंप्यूटराइज्ड वेंडिंग मशीनें नस्ब कर दी हैं, जहां से कोई शख्स दूध, ब्रेड और अंडे की तरह बंदूक की गोलियां भी हासिल कर सकता है। कंपनी का कहना है कि इसकी मशीनें गोलियां खरीदने वाले शख्स का चेहरा स्कैन कर लेती है और सॉफ्टवेयर इसके ड्राइविंग लाइसेंस में भी उम्र दर्ज और दीगर तफसीलात की तेजी और आसानी से तस्दीक करती है। अमेरिका में बालिग अफराद को असलहा रखने की आजादी है, ताहम इस आजादी के इस्तेमाल के लिए कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। जब कोई बालिग शख्स असलहा या उसकी गोलियां लेने के लिए हथियारों के स्टोर पर जाता है तो उसे अपने मतलूबा चीज तमाम कानूनी मराहिल से गुजरने के बाद ही मिलती है। हथियारों पर पाबंदी के हामियों का कहना है कि इस वेंडिंग मशीनों के तनसीब से एक ऐसे मुल्क में हलाकतों के वाकयात में इजाफा हो सकता है जहां सिर्फ यौम आजादी की तकरीबात में खुशी के इजहार के लिए फायरिंग से हर साल कम से कम 33 अफराद अंधी गोलियों का निशाना बन जाते हैं। T20 आलमी कप 2024 में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी के बाद अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। इस दिन में अब जाकर PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है। उसने कौमी सिलेक्टर्स वहाब रियाज और अब्दुल रज़्ज़ाक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल पाकिस्तानी टीम T20 आलमी कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। इसे हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका जैसी कमजोर टीम से भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम अपने ग्रुप में तीसरे मकाम पर चली गई थी और सुपर 8 ग्रुप में दाखिल नहीं हो सकी। इस ग्रुप में हिंदुस्तान और अमेरिका टॉप पर थे जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़श्ता पेशकश में शारिक रहमानी, सफा, मुबीन रजा, मोहम्मद असलम, समीउल्लाह, शहबाज, जिया ज़हूर, वहीदुर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी, गुफरान रहमानी और मोहम्मद सादिक साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक ID है फिक्र नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।